we are taking one more question. Assuming gamma n, gamma 1 minus n is equals to pi cosec n pi, where n lies between 0 to 1, then show that 0 to infinite x to the power p minus 1 over 1 plus x dx is pi by sin p pi, where p also lies between 0 to 1. Okay, अब देखिए हमारे पास हम पहले ही ऑलरेडी ये पता लगा चुके हैं कि 0 to infinite x to the power n minus 1 over 1 plus x to the power m plus n dx की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? We have the value for this integral gamma m gamma n divided by gamma m plus n, और ये हमारे पास होता है बीटा mn, क्योंकि हमें रिलेशन पता है बीटा और गामा के बीच में. फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू है बीटा mn, और बीटा mn इज ऑलवेज इक्वल टू गामा m गामा n divided by gamma m plus n. Say this is the equation number A. अब A में हमने ऐसे सेटिंग की और we have taken here m plus n is equals to 1, which implies m is your 1 minus n. Okay, तो इक्वेशन A में वैल्यू को सेट करने पर m plus n कितना है हमारे पास 1 dx, और m की वैल्यू कितनी है 1 minus n gamma n divided by gamma 1. So this is the value for the integral 0 to 1 0 to infinite x to the n minus 1 1 plus x dx. अब क्योंकि n भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है और p भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं. Let us take n is equals to p. Then integral becomes 0 to infinite x to the power p minus 1 over 1 plus x dx is equals to what we have. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 minus p gamma p over factorial 1, which has a value always equal to 1. अब देखिए हमारे पास जो इंटीग्रल है 0 to infinite 1 plus x x to the power p minus 1 dx, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से. Check it out. Okay, pi by sin p pi. This is from the equation number 1. अगर हम इन दोनों रिलेशन से दिस इज इक्वेशन b, अगर b और 1 में हम देखें, अगर हम इक्वेशन b में n को p रख देते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा. So we have the left hand side, देखिए 0 to infinite x to the power p minus 1 1 plus x dx, and this is equal to gamma 1 minus p gamma p over 1, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है देखिए फ्रॉम द गिवन रिलेशन. अगर इसमें हम n को p रख दें तो हमारे पास क्या मिलेगा गामा p गामा 1 minus p is equals to pi cos p pi. तो गिवन रिलेशन से अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो हमें क्या मिलेगा. अब देखिए 0 to infinite x to the power p minus 1 over 1 plus x dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर b से हमारे पास क्या मिलेगी इक्वल टू 1 गामा 1 minus p गामा p. ओके, और गिवन रिलेशन से जो हमारे पास गिवन रिलेशन है क्वेश्चन में, चेक इट आउट देयर.
अगर मैं n इज इक्वल्स टू पी रख दें तो गामा पी 1 माइनस पी की वैल्यू इससे क्या मिल जाएगी हमारे पास, डेट इज इक्वल टू पाई कॉसेक पी पाई, ये हमें मिल जाएगा। तो वो इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाता है, सो वी हैव द इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट x to the power p minus 1 divided by 1 plus x dx is equals to pi cosec p pi cosec p pi, और cosec की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होती है हमारे पास, that is pi divided by sin p pi। यही हमें प्रूव करना था। Some important result we have taken as a remark. Double integral along the region D x to the power L minus 1 y to the power m minus 1 dx dy can be written as gamma L gamma m divided by gamma L plus m plus 1 into alpha to the power L plus m. Alpha is any parameter, okay, and where D is the region, that is domain, for x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and x plus y is less than equal to alpha, okay, this is your alpha। इसको हम डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज डिरिचलेट थ्योरम, DIRICHLETS, Dirichlet's theorem। According to its statement, triple integration along the volume V x to the power L minus 1 y to the power m minus 1 z to the power n minus 1 dx dy dz always equal to gamma L gamma m gamma n divided by L plus m plus n plus 1, where V is the volume or say region in shape of volume। For x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0 and x plus y plus z is always less than equal to 1। अगर हमारे पास देखिए, हम इसमें मीनिंग क्या है कि हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को इस डिरिचलेट थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन जो कि इस तरीके से गिवन है तो उसकी वैल्यू हम क्या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, गामा एल गामा एम गामा एन प्रोडक्ट फॉर्म में, और नीचे गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1 वेयर वी इज द वॉल्यूम एज अ रीजन फॉर x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0 and x plus y z is always less than equal to 1। अगर ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल करती है तभी हम इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज द इंटीग्रल शुड बी इन टर्म्स ऑफ दिस वन फॉर्म, और उसके साथ साथ ये एक्सिलरीज कंडीशन है, तभी हम डिरिचलेट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। Find the volume of the solid bounded by the coordinate planes and the surface root x by a plus under root y by b plus under root z by c is equals to 1। सॉल्यूशन। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को डिरिचलेट थ्योरम से सोल्व करना चाहता हूँ।
इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट हियर वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बताना चाहूंगा। Volume is always given by the triple integration, that is dx, dy, dz, or can be written as dv, where dv is always dx, dy, dz। तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी रीजन जो कि वॉल्यूम कंटेन करता है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला तो है, लेकिन हम इसको यूज करना चाहेंगे, किसमें यूज करना चाहेंगे? डिरिचलेट थ्योरम में, और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमने कहा था कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स जहां शुरू होते हैं वहां पर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंडीशन तो है। ओके, लेकिन अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो यहां देखिए सरफेस में हमारे पास क्या है? x की पावर x बाई a की पावर हाफ, y बाई b की पावर हाफ, z बाई c की पावर हाफ, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है। इसका मतलब अभी हम इसमें डिरिचलेट थ्योरम नहीं लगा सकते। तो हमें देखिए हमेशा इस कंडीशन को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? सिंपल लीनियर फॉर्म में। और लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें दूसरे पैरामीटर्स यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के लिए रूट एक्स बाई ए को अगर हम मान लेते हैं u, रूट y बाई बी को अगर हम मान लेते हैं v, और रूट z बाई सी को हम मान लेते हैं w, तो हमारे पास कंडीशन दूसरी क्या हो जाएगी? u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास ऐसा करने पर? u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये लीनियर फॉर्म में है और जो हमारे पास थ्योरम में स्टेटमेंट में है वो भी लीनियर फॉर्म में है। अब क्योंकि एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डेट्स वाई बाय द रिलेशन u b w, अगर हम x को कुछ भी पुट करें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो u भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस रिलेशन में हम y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रूव करें तो v भी इस तरीके से w भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास न्यू वेरिएबल्स जो हमने इंट्रोड्यूस किए हैं u v w, उसके लिए कंडीशन क्या होगी देखते हैं। हमारे पास रूट एक्स बाई ए, अंडर रूट एक्स बाई ए, तो हमने क्या माना था? u मीन्स x बाई a इज योर u स्क्वायर, देन dx becomes 2a u du। इसी तरीके से अंडर रूट y बाई b को हमने माना था v, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करें तो क्या मिलेगा? y बाई b इज इक्वल्स टू v स्क्वायर एंड डिफरेंशिएटिंग dy इज इक्वल्स टू 2b v dv। इसी तरीके से हमने अंडर रूट z बाई c को सपोज किया था w, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन z बाई c इज योर w स्क्वायर and then differentiating, then dz is equals to 2cw dw। ओके, और कंडीशन हमारे पास क्या बन रही थी? u प्लस v प्लस w is equals to 1 and as well as u is greater than equal to 0, v is greater than equal to 0, w is greater than equal to 0, क्योंकि x y z भी 0 से बड़े हैं
तो UVW भी 0 से बड़े होंगे उनके रिलेशन में अगर हम x y z की वैल्यू रखें। अब देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल इंटीग्रल था वो क्या था फॉर द वॉल्यूम, dx dy dz। ओके, इसको हमने कन्वर्ट किया है अनदर पैरामीटर यूज करके। dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वी हैव द वैल्यू फॉर dx इज इक्वल्स टू 2au du। dy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2bv dv। और dz की वैल्यू हमारे पास है 2cw dw। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास इंटीग्रल बनता है v डैश, और इसमें से देखिए कांस्टेंट हमारे पास कलेक्ट करने से कितना हो जाएगा, 8abc इंटू UVW du dv dw। तो सिंप्लीफाई करने पर ये इंटीग्रल हमें मिलता है। अब इसे हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग द डिरिचलेट थ्योरम। तो सबसे पहले इसको डिरिचलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए बाकी कंडीशंस तो हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास u प्लस v प्लस w 1 मिल चुका है और u v w तीनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल चुकी है। अब केवल हमें इस इंटीग्रल को डिरिचलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो हम इजीली कर सकते हैं। दैट इज UVW है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, u की पावर 2 माइनस 1 क्योंकि l माइनस 1 की फॉर्म में लिखना है, v टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज m माइनस 1 की फॉर्म, w टू द पावर आल्सो 2 माइनस 1 क्योंकि UVW की पावर कितनी है, 1 1 1 है, दैट इज du dv dw। अब देखिए अगर हम इस फार्मूले से कंपेयर करें तो हमारे पास l कितना होगा, 2, m इज आल्सो 2, n इज आल्सो 2, और हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, अप्लाइंग द डिरिचलेट थ्योरम, तो हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा, क्या रिलेशन था, गामा l एंड l इज देयर 2, इट इज योर m, इट इज योर n। ओके, तो गामा l that is 2, gamma m that is 2, gamma n that is 2। okay, gamma n is also here 2 divided by gamma m plus n, और n हमारा यहाँ पर कितना है, n is also there 2, तो हम इसको 2 लिख दें प्लस 1 which is equal to 8abc। गामा 2 फैक्टोरियल 1 होगा क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस 1 इज फैक्टोरियल n, यानी फैक्टोरियल n गामा से एक ज्यादा होता है, और अगर हम गामा को कन्वर्ट करें फैक्टोरियल n में तो एक कम हो जाएगा। तो गामा 2 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाय that is gamma 7। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 8abc फैक्टोरियल 1 इज 1 फैक्टोरियल 1 इज 1 फैक्टोरियल 1 इज 1, उनका प्रोडक्ट भी 1 होगा, और गामा 7 इज फैक्टोरियल 6, और इसको हम फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, 720। ओके, फैक्टोरियल 6 का एक्सपेंशन में देख लीजिए, डेट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो वी हैव द वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 8abc डिवाइडेड बाय 720। तो हम डिरिचलेट थ्योरम की हेल्प से किसी भी बाउंडेड रीजन के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं।